basic electrical engineering lab. Okay, in basic electrical engineering lab, that is first year basic electrical engineering lab, that is total number of experiment, that is 10. Okay, the basic electrical engineering lab, and code is KEE101P, and total number of experiment, that is 10. कितने हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं? टोटल 10 परफॉर्म कर रहे हैं. ओके, इन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब, दैट इज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनल and external. ठीक है, तो टोटल मार्क्स इज सपोज 50, टोटल मार्क्स 50 मार्क्स का है, जिसमें कि 25 मार्क्स इंटरनल एंड 25 मार्क्स एक्सटर्नल. ओके, इन 25 मार्क्स एक्सटर्नल, internal distribution is also there. In 25 marks, suppose 5 marks for 5, 10 marks for 5 and 10 marks for performance. That means जो आपको internal test होगा उसमें आपको perform करना है. 10 marks का आपको हमारा हो गया, 10 marks का हमारा viva question, that is quiz, and 5 marks का attendance. And in 25 marks external distribution, that is 10 marks for performance and 15 marks for viva, जो हमारा external है. Okay, so we discuss one by one experiment, and experiment first we discuss, that is verification of Kirchhoff law. Experiment number 1. Experiment number first. Okay, what is the aim of the experiment first? That is, aim is verification of Kirchhoff law. Verification of Kirchhoff law. Verification of Kirchhoff. The first we discussed what is the theory of the Kirchhoff law. Okay, तो वेरीफाई हम लोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले what is the Kirchhoff law? There are two laws of Kirchhoff, that is first and second law. So what is the first law? That is Kirchhoff current law. So what is the Kirchhoff current law? The algebraic sum of the current meeting at a point or junction or node is equal to 0. Again repeat, the algebraic sum of the current meeting at a point or junction or node is equal to 0. In other words, sum of incoming currents towards the junction or node or point is equal to the sum of outgoing current away from the junction, node or points. Okay, so this is your Kirchhoff current law, that is first law, जिसको बोलते हैं हम लोग जंक्शन लॉ. Similarly, Kirchhoff voltage law, that is second law. The algebraic sum of the voltage in any closed path or loop or mesh is equal to 0. Again repeat, that is second law, Kirchhoff voltage law. The algebraic sum of the voltage or EMF in any closed path or loop
equal to 0. In other words, sum of EMF or voltage in any closed path or loop or mesh is equal to the product of current and resistance. Is it clear? That this is your theory of Kirchhoff law. And how to verify the Kirchhoff law? By the experiment. Already explained the theory. Okay. Suppose second law, that is KVL. यदि हम लोग KVL की बात करेंगे, Kirchhoff voltage law. Okay. जब हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसमें कि सपोज हमारा ये सप्लाई है, दिस इज योर माइनस, दिस इज योर प्लस. ओके. सपोज हम लोग ये देते हैं सप्लाई, दैट इज E1, जो आपको किट पे जो अभी हम दिखाएंगे, सेम इसी तरह है. सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड वन जो लेंगे हम लोग, यहाँ पे E2, दैट इज माइनस एंड दिस इज योर प्लस. और यहाँ पे हम लोग ये ग्राउंड करेंगे. ठीक है. ये हमारा सप्लाई है, जो हम लोग सप्लाई जहां से लेंगे, दैट इज डीसी सोर्स. ये बैटरी है E1 और E2. अब यहाँ पे हमारा जो डायग्राम आप लोगों को दिखेगा, सपोज हमारा यहाँ पे आपका प्लस है या माइनस है, या माइनस प्लस, यहाँ माइनस भी दे सकते हैं, प्लस भी दे सकते हैं. ठीक है. तो सपोज यहाँ पे आप माइनस लिए और ये प्लस लिए, कोई भी टर्मिनल पहले और बाद में ले सकते हैं. सपोज ये माइनस है और ये प्लस है. सपोज ये V1 है, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे और इसका निगेटिव इसके निगेटिव से कनेक्ट. इस सर्किट को हम लोग सप्लाई करेंगे. यहाँ पे फिर हमारा सपोज यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सपोज यहाँ रेजिस्टेंस R1 है. ठीक है. यहाँ पे ये टर्मिनल लूप बना हुआ जो ओपन है. ठीक है. इसको हम लोग ऐसे वायर लेके क्लोज कर देंगे. ठीक है. फिर यहाँ पे पॉइंट है, फिर यहाँ पे पॉइंट है, फिर यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है, सपोज यहाँ हमारा R2 है. ठीक है. फिर यहाँ पे हमारा लो है बना हुआ, यदि क्लोज है तो क्लोज दिखा रहेगा उसमें किट में. दिस इज क्लियर. नेक्स्ट हमारा इसमें इधर नहीं करके, यदि हमारा ऐसे एक सर्किट है जो यहाँ पे आपको किट में दिखेगा, यहाँ पे सपोज हमारा ये क्लोज कर देंगे इसको. ठीक है. फिर यहाँ पे बैटरी है, सपोज ये माइनस है और ये प्लस है. ये हम V1 लिए तो यहाँ ये माइनस और ये प्लस. इसका E2 का प्लस टू प्लस और इसका माइनस टू माइनस. फिर यहाँ पे हमारा सपोज एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ लोब है, ये हमारा सपोज मान लो R3 है और ये हमारा लोब है, ये लोब है. ऐसे करते. ओके. तो जैसे हम लोग यहाँ से सप्लाई देंगे, तो फर्स्ट मेजर द वोल्टेज अक्रॉस, सपोज R1 के अक्रॉस जो दैट इज VR1, यहाँ पे हम लोग मेजर करेंगे. Similarly, measure across the resistance R2, that is VR2. Similarly, the voltage measure across the resistance R3, that is VR3. That means, in any closed path, the sum of the voltage in any closed path is equal to 0. That means, यदि हम लोग वेरीफाई करेंगे कि सपोज E1 प्लस E2 हमारा यदि 10 वोल्ट होता है, आप E1 और E2 को मेजर देख सकते हैं सेट करके मल्टीमीटर से, कि ये हम लोग कितना रखेंगे. दिस इज योर इनपुट सप्लाई. ठीक है. और इसके अक्रॉस ड्रॉप और इसके अक्रॉस ड्रॉप और इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना आ रहा है, दोनों इक्वल आना चाहिए. दैट इज E1 प्लस E2 इक्वल टू VR1 प्लस VR2 प्लस VR3. दैट मींस ये भी हमारा कितना आना चाहिए, 10. इसी को बोलते हैं हम लोग वेरीफाई द किरचॉफ लॉ. जो हमने सप्लाई इनपुट दिया, दैट मीन इसके ड्रॉप कितना है, इसके ड्रॉप कितना है और इसके ड्रॉप कितना है. ठीक है. तो ये हमारा हो गया केवीएल. सिमिलरली किरचॉफ करंट लॉ की बात यदि करेंगे हम लोग, दैट इज फर्स्ट लॉ, किरचॉफ करंट. ठीक है. सिमिलरली हमारे पास ऐसी सप्लाई होगा यहाँ पे, दैट इज E1, दिस इज माइनस प्लस. सिमिलरली यहाँ पे E2 माइनस प्लस और यहाँ पे हमारा ग्राउंड है. ठीक है. और यहाँ पे हमारा जो हमारा सर्किट है हमारा, सपोज ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है,
ये रेसिस्टेंस है और ये रेसिस्टेंस है, और यहाँ पे हमारा सर्किट भी ये ग्राउंड किया हुआ है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है, जिसको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, सपोज इसको हम लोग सप्लाई दे दें, सपोज यहाँ से प्लस टू प्लस कनेक्ट कर देंगे, सिमिलरली इसका प्लस हम लोग दूसरी बैटरी मतलब इस दोनों को सप्लाई दिए, तो हमारा क्या होगा इनपुट, दैट मीन जो सोर्स हमारा करंट इसमें जाएगा। आप इसमें रेसिस्टेंस में R1 R2 कुछ भी नाम दे सकते हैं, R3 R4 R5, दैट मीन्स ये इनकमिंग है और ये क्या है आउटगोइंग है, सम ऑफ इनकमिंग इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग, तो ये हमने यहां से यहां कनेक्ट कर दिया, प्लस टू प्लस, यहाँ प्लस है, सपोज ये माइनस टू, यहाँ पे हम लोग ये वायर से कनेक्ट कर देंगे, तो ये न्यूट्रल आ गया, इस न्यूट्रल को हम लोग यहाँ कॉमन लेंगे, ठीक है, तो ये देखो हमारा कॉमन हो गया न्यूट्रल। सिमिलरली बात ये कंप्लीट हो चुका है, अब इसका जो है बस इस पॉइंट को इसको भी न्यूट्रल कर देंगे, सिमिलरली इसको भी हम लोग न्यूट्रल कर देंगे और तीसरा इसको भी न्यूट्रल कर देंगे। अब सपोज हमारा ये हमारा था IS1 में सोर्स करेंगे, सिमिलरली ये था हमारा IS2, इसको आप लोग ले लो I1, इसको I2 और ये I3, दैट मींस वेरीफाई द किरचॉफ करंट लॉ, दैट इज फर्स्ट लॉ, IS1 प्लस IS2 सम ऑफ इनकमिंग इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग, दैट मींस I1 प्लस I2 प्लस I3, तो ये चीज हम लोग करेंगे बाय एक्सपेरिमेंट किट के साथ, ठीक है, तो दोनों हो गया KVL एंड KCL, ओके। नो गो टू द किट, अब हम लोग किट के पास चलेंगे, ओके। सपोज ये हमारा किरचॉफ लॉ है, देखो यहाँ पे दिस इज योर KVL एंड दिस इज योर KCL, KVL एंड KCL, okay, how to connection, that is here is the Kirchhoff voltage law and here is the Kirchhoff current law। तो फर्स्ट हम लोग KVL यदि हम लोग करते हैं, इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, हमारे पास कनेक्टिंग वायर है, अब एक एक हम समझाते हैं, जो हमने बोर्ड पे समझाया था उसी तरह। सपोज हमने ये प्लस टर्मिनल लिया, ये देखो यहाँ पे दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज जो निगेटिव, ये हमारा सप्लाई है जो डीसी सोर्स है, यहाँ से लिया हमने, सपोज इस वाले बैटरी को हम लोग ये प्लस से हम लोग यहाँ प्लस पे कनेक्ट, ओके, देखो ये प्लस टू प्लस, ये लूज है इसको इंटरचेंज कर देते हैं, और यहाँ प्लस, ओके, प्लस टू प्लस। सिमिलरली अब निगेटिव ऑफ दिस बैटरी, जो हमारा ये सोर्स है इसका निगेटिव, ये निगेटिव नीचे वाला, इसके निगेटिव से हमने कनेक्ट किया, ओके, यहाँ हमने इस सर्किट को यहाँ सप्लाई किया इस बैटरी से, ओके। नेक्स्ट यहाँ यदि हम लोग देखें तो ये ओपन है, इसको क्लोज करने के लिए ऐसे हम लोग इससे इसको इससे हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक है, क्लोज हो गया, दिस इज आल्सो क्लोज, R1 R2, ओके। अब यहाँ पे हम लोग सप्लाई दे रहे हैं किसको, V2 को, इसका E2 का पॉजिटिव, ये जो हमारा E2 का पॉजिटिव है ये टर्मिनल हियर, दिस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ V2, यहाँ से हमारा ये, अब निगेटिव का जो है हमारा इससे और इस निगेटिव को हमने ये कनेक्ट कर दिया, ओके। एंड नेक्स्ट यहाँ पे देखो सर्किट कंप्लीटली हुआ है, तो इसको हम लोग क्लोज कर देंगे, हो गया कंप्लीट, चेक कर ले, ये हो गया, यहाँ भी हो गया, और दिस सप्लाई गिवन टू दिस वन एंड दिस टर्मिनल, ठीक है। एंड ऑन द स्विच, यहाँ से हमने जैसे सप्लाई किया, ये देखो ऑन हो गया,
First we adjust the voltage, set the voltage of E1. ओके, तो E1 को मेजर करते हैं हम पहले कितना वोल्टेज है। In multimeter show the voltage 4.83. This voltage can adjusted by this node. This node. Suppose we set the voltage 5.02. Okay, you can set by this. Similarly, E2 का हम लोग चेक करें। That is 4.7. You can increase this voltage by this adjustment of this node. Set the voltage, that is 5.05. हमने सेट कर दिया कितना 5.05, और वो भी हमारा 5.04 था। जरूरी नहीं इसको 6 भी लिख सकते हैं, इसको 4, कोई जरूरी नहीं। 6, 7 एनी वोल्टेज यू कैन सेट। सेट जैसे हमने कर लिया, अब इसको वेरीफाई करेंगे। तो आपका सप्लाई वोल्टेज हो गया और यहाँ पे आपका ये कनेक्शन लूज हो गया है। अब इसको ओके, अब वेरीफाई करेंगे। हमने सप्लाई दे दिया, दैट मींस यहाँ 5.03 हम लोग लिख लेंगे रीडिंग। जो हमारा V1 हमने सप्लाई दिया है दैट इज 5.03 एंड V2 दिया है 5.04 वोल्टेज। Okay, that is supply, and verify this voltage measure across the R1 drop. R1 के क्रॉस ड्रॉप देखें, ठीक है। R2 के क्रॉस volt. V1 1.5 volt, V2 2.6 and V3 that is 3.5. The 3.5 plus 2.5 plus 2.3 that is 10 point. Total voltage is this voltage drop plus this voltage drop and plus this voltage drop, that is 10.5
0.08. Okay, so sum of the voltage drop across R1, R2 and R3, that is verified, that is equal to V1 plus V2. Next we verify the Kirchhoff current. तो मल्टीमीटर को हम लोग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इस लूप को निकाल के मिली एम्पियर पे गए, ये हमारा से ओके। और इस कनेक्शन को यहाँ से ऑफ कर देंगे, फिर से हम लोग अब कनेक्ट करेंगे इसको। सेकेंड, दैट इज किरचॉफ करंट लॉ। ओके, तो सिमिलरली हम लोग सप्लाई देंगे, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इससे हम लोग सपोज इसको यहां सप्लाई दे रहे हैं। सिमिलरली इसका पॉजिटिव टर्मिनल से E2 का, ये वोल्टेज V2 दैट इज E2 का, इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। दिस इज सेकंड किरचॉफ करंट लॉ, दिस इज KCL। ओके, अब क्या करेंगे, इसको इस ग्राउंड को माइनस ऑफ टर्मिनल connected to the minus of this terminal. Okay, yeah, this terminal, and this common goes to the here neutral. यहाँ पे हमने न्यूट्रल कॉमन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले को इससे कनेक्ट करेंगे और इस वाले इससे कनेक्ट करेंगे और इस वाले को और इससे क्लियर एंड सप्लाई ऑन कर दिया। ठीक है, ये हमारा कनेक्शन क्लियर है। इसका प्लस से इसको हमने सप्लाई दिया। सिमिलरली बैटरी 2 जो है हमारा, उसके प्लस से ये देखो हमारा ये प्लस से यहाँ पे हमने दिया, और इसका जो दूसरा पॉइंट है यहाँ से देखो हमने यहाँ कनेक्ट किया और ये दोनों को हमने कॉमन कर दिया, क्योंकि ये नेगेटिव टू नेगेटिव और इस नेगेटिव को हमने यहाँ, बाकी ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये से अब सोर्स करंट, सपोज मेजर द सोर्स करंट। ठीक है, तो कैसे मेजर करेंगे हम लोग, क्योंकि पैरेलल में हम लोग वहां वोल्टेज मेजर करते थे अक्रॉस द टर्मिनल R1 के अक्रॉस, यहाँ पे सीरीज में करेंगे, एमीटर लगाएंगे, दैट इज मल्टीमीटर। हमने इसको सेट कर लिया है, ये देख सकते हैं आप, अभी 0 0 है। अब इसको हम लोग सीरीज में करने के लिए अब इसको हम लोग ऐसे यहाँ कनेक्ट रखेंगे। ठीक है, और यहाँ लगाएंगे, दैट इज IS1, जो हमने थ्योरी बताया था आपको, IS1 प्लस IS2 इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। IS1 की वैल्यू हम लोग देखें तो आ रहा है 2.56। IS1 दैट इज 2.56। ठीक है, सिमिलरली IS2 को चेक करेंगे, IS2 को। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम ये और ये, ठीक है, तो 1.35 मिली एम्पियर, वो भी हमारा मिली में था, ये भी मिली। तो IS2 की वैल्यू 1.356। IS1 प्लस IS2 इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, वो चेक करेंगे। ये कनेक्ट कर दिया। अब सपोज हम इसको I1 लेते हैं, इसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसको मेजर करने के लिए यहाँ पे आप ये लगाइए और यहाँ पे ऐसे, ठीक है, दैट इज 2.02। अभी चेक करते हैं दूसरा I2 1.38 और तीसरा
0.69, 2.01, 1.3 एंड 0.76। तीनों का सम करेंगे तो हमारा एग्जैक्टली दैट इज IS1 जो सोर्स करंट था दैट इज प्लस IS2 इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3।